عائشہ منزل کے قریب عرشی مال میں آتش زدگی کا واقعے کے حوالے سے حادثے میں 5 افراد جاں بحق ہوئے۔ آتش زدگی کے حوالے سے تحقیقات بھی جاری ہیں، جبکہ ایس پی سی اے نے عمارت کو کلیئر قرار دے دیا۔ مزید تازہ ترین صورتحال کیا ہے وہاں کی، یہ بتائیں گے ہمارے نمائندے سلمان سلیم وہاں پر موجود ہیں۔ سلمان، کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی دیکھیں، اس وقت ہم عرشی مال کے باہر موجود ہیں اور جو 2 روز قبل آگ لگی تھی، جس کے بعد اس عمارت کو سیل کر دیا گیا تھا، تاہم ایس پی سی اے کی رپورٹ آنے کے بعد عمارت کو کلیئر قرار دینے کے بعد جو یہاں کے رہائشی ہیں ان کو اجازت دے دی گئی کہ وہ اپنی رہائش جو ہے وہ اپنے گھروں میں اختیار کر سکتے ہیں۔ اس سے قبل اگر ہم بات کریں تو مجموعی طور کے اوپر 130 سے زائد دکانیں جو ہیں وہ اس آتش زدگی کے واقعے کے اندر جل کے خاکستر ہوئی ہیں، جبکہ اوورآل اگر دکانوں کی بات کی جائے تو 200 کے قریب دکانیں جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں، جو کہ گراؤنڈ فلور اور میزانائن فلور کے اوپر قائم کی گئی ہیں۔ آگ کی اگر ہم بات کریں تو فائر بریگیڈ حکام سے ہماری بات ہوئی ہے، ان کا کہنا تھا کہ آگ جو ہے وہ اس نے شدت اس لیے اختیار کی کیونکہ اندر جو ہے وہ فوم کے کارخانے تھے، جو میٹریس ہوتے ہیں اس کے کارخانے تھے، اس کی دکانیں تھیں، اور جیسے ہی آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا تو جو فوم ہے اس نے فوراً آگ کے اوپر آگ پکڑی اور اس کی وجہ سے آتش زدگی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی۔ اور جو دیواریں آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں، میرے کیمرامین حارث آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ کالی ہو چکی ہیں، اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ فوم بتائی جا رہی ہے۔ دوسری جانب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ فائر بریگیڈ کی جو رپورٹ ہے اس کے آنے کا انتظار کیا جا رہا ہے، اس کے اندر واضح طور پر پتہ چل سکے گا کہ آگ لگنے کی کیا وجہ بھی کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ عرشی شاپنگ مال میں آتش زدگی کے بعد انتظامیہ کی جانب سے مفت طبی کیمپ لگائے گئے ہیں، جہاں متاثرین کو مفت علاج اور ادویات فراہم کی جا رہی ہیں۔ مزید بتائیں گی وہاں پر موجود ہماری نمائندہ آئمہ خان۔ جی آئمہ۔ جی بالکل ثانیہ، عرشی شاپنگ مال اور یہاں پہ جو ہے وہ گزشتہ 2 روز پہلے جو ہے وہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا آتش زدگی کا، جس میں کافی سارے لوگ جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں، جس کے بعد جو ہے وہ متاثرین کی امداد کے لیے یہاں پہ جو ہے وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ضلع وسطی کی جانب سے جو ہے وہ یہاں پہ مفت طبی کیمپ جو ہے وہ لگایا گیا ہے۔ سندھ گورنمنٹ کی جانب سے یہاں پہ طبی کیمپ لگایا گیا ہے تاکہ متاثرین کو جو ہے وہ صحت کی سہولیات جو ہے وہ یہاں پہ فراہم کی جا سکے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر مبشر موجود ہیں۔ سر بتائیے گا یہ کیمپ جو ہے وہ مزید کتنے روز تک یہاں پہ جاری رہے گا؟ سر جی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے فوری اقدام کیا تھا اور ہمارے ڈی ایچ او جو ہے ڈاکٹر غلام عباس، ان کی طرف سے ہدایت تھی کہ فوراً کیمپ لگایا جائے۔ تو 2 دن سے تو لگا ہوا ہے یہ کیمپ، مزید یہ ہے کہ ہم اس کو پروسیڈ کریں گے 2 سے 3 دن، لیکن اگر ضرورت پڑتی ہے ہمیں کہ اس کو اور ضرورت ہے تو ہم اس کو مزید پروسیڈ کر سکتے ہیں۔ باقی یہ کہ جو متاثرین ہیں جو کیمپوں میں ٹھہرے ہیں ہمارے پاس یہاں پر آ رہے ہیں، ان کے لیے میڈیسن ساری موجود ہے ہمارے پاس۔ فار ایگزامپل اگر کسی کو شوگر، بلڈ پریشر ہے یا روٹین کی میڈیسنس لیتے ہیں، ان کے پاس سب فائنینشیل ایشوز ہو گئے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فلیٹس میں آتش زدگی ہو گئی ہے اور میڈیسنس بھی نہیں ہیں، تو ہم ان کو یہاں پہ پرووائڈ کر رہے ہیں وہ۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے سنا ہمارے ساتھ ڈاکٹر مبشر موجود تھے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو سندھ گورنمنٹ کی جانب سے یہاں پہ کیمپ لگایا گیا ہے، اس میں جو ہے وہ مختلف سہولیات موجود ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ شوگر اور بلڈ پریشر کے جو امراض میں مبتلا افراد ہیں جو اپنی دوائیں جو ہے وہ اپنی فلیٹوں میں چھوڑ کے آ گئے ہیں، اور اب جو متاثرین ہیں ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پہ مختلف جگہوں پہ مقیم ہے، تو ان کے لیے یہاں پہ جو ہے وہ مفت دوائیں رکھی گئی ہیں اور جو ہے صحت کی سہولیات بھی انہیں فراہم کی جا رہی ہے تاکہ بر وقت جو ہے علاج فراہم کیا جا سکے۔ جی ایف بی ایریا بلاک 12 میں غیر قانونی کثیر المنزلہ عمارت کی تعمیرات کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست کی سماعت ہوئی۔ احکامات کے باوجود کارروائی نہ کرنے پر عدالت کا ایس بی سی اے حکام پر برہمی کا اظہار۔ عدالت نے ڈائریکٹر ایس بی سی اے سینٹرل کا قومی شناختی کارڈ بلاک کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ مزید بات کریں گے، ممتاز جمالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ممتاز، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیں جی، آج سندھ ہائی کورٹ کراچی میں غیر قانونی تعمیرات سے متعلق کی جو ہے درخواست پر سماعت ہوئی ہے، جہاں پر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جو نمائندگان ہیں وہ بھی آج عدالت میں پیش ہوئے ہیں، جبکہ دیگر حکام بھی جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ لہٰذا عدالت نے جو ہے غیر قانونی تعمیرات میں ملوث جتنے بھی افسران ہیں ان کے ایسی وغیرہ بلاک کرنے کا بھی حکم دے دیے گئے، ساتھ ہی ساتھ عدالت نے آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ بھی طلب کر لیا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔
सिटी 21 की खबर पर एक्शन। मलीर बिन कासिम टाउन में सरकारी स्कूल की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। सरकारी स्कूल की छत पर से प्लास्टर गिरने की खबर को सिटी 21 ने नशर किया था, जिसके बाद इंतजामिया हरकत में आ गई और मरम्मत का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। सिटी 21 की खबर पर एक्शन लिया गया है। मलीर बिन कासिम टाउन में सरकारी स्कूल की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। सरकारी स्कूल की छत से प्लास्टर गिरने की खबर को सिटी 21 ने नशर किया था, जिसके बाद इंतजामिया हरकत में आ गई। मज़ीद जानते हैं आयमा खान से। जी आयमा। जी बिल्कुल, सिटी 21 की खबर पर एक्शन। मलीर बिन कासिम टाउन में सरकारी स्कूल की मुरम्मत का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। सरकारी स्कूल की छत से प्लास्टर गिरने लगा था। इंतजामिया की जानिब से स्कूल को कमजोर करार देकर खाली करा लिया गया था। ताहम जो हेड मास्टर हैं उन्होंने उस वक्त ये फैसला किया कि तलबा को जो है वो बाहर ग्राउंड में ही पढ़ाने का जो है वो फैसला किया, जिसके बाद सिटी 21 ने जो है वो वहाँ पे जाके कवर किया। उसके बाद जो है तलबा को अब जो है इंतजामिया की जानिब से तलबा को आरजी शेल्टर के नीचे पढ़ाया जा रहा है। स्कूल में तकरीबन 300 तलबा जो है वो जेरे तालीम है। सिटी 21 के जो है वो मशहूर हैं। हेड मास्टर का ये भी कहना है कि हम सिटी 21 न्यूज़ के जो है वो मशहूर हैं, जिन्होंने हमारे मसाइल पर बात की। इमारत को मखदूश करार देकर खाली कराने का इंडिया दे दिया गया था, नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन मीडिया ने हमारे मसाइल को उजागर किया। मजीद हेड मास्टर का ये भी कहना था कि हुकूमत की जानिब से अब बच्चों को आरजी शेल्टर बना के दे दिए गए हैं, ताहम जो है वो इमारत की मुरम्मत का काम भी जो है वो उस वक्त जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब सरकारी स्कूलों के फर्नीचर कीमत में करोड़ों रुपए की करप्शन केस की समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी तालीम और सूबे भर के तमाम डायरेक्टर्स, डीईओज, टीईओज और मुतल्लिका अफसरान से रिपोर्ट तलब कर ली। करोड़ों रुपए का बजट कहाँ जाता है, तफसीली रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दे दिया है। केस के हवाले से अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों के फर्नीचर कीमत में करोड़ों रुपए की करप्शन केस की समाअत हुई है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, अपडेट कीजिएगा। देखिए जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में सूबे के सरकारी स्कूलों के फर्नीचर के मद में करोड़ों रुपए के करप्शन और स्कूल में फर्नीचर और दीगर सहूलियात फराहम न करने से मुतल्लिक मामले पर समाअत हुई है। अदालत में सेक्रेटरी तालीम, सूबे भर के तमाम डायरेक्टर्स, डीओज और टीओज और मुतल्लिका अफसरान से रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत ने 10 बरसों के दौरान स्कूलों में फराहम करदा सहूलियात फराहमी करने से मुतल्लिक भी रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत का फराहम करदा फर्नीचर के हवाले से हेड मास्टर, टीओ की रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दे दिया है। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने रिमार्क दिए कि सरकारी स्कूल के बच्चे फर्श पर पढ़ रहे हैं, ना कोई फर्नीचर है, ना वॉशरूम है, ना दीगर सहूलियात उनको मैसर है। करोड़ों रुपए का बजट कहाँ जाता है, तफसीली रिपोर्ट पेश किया जाए, अदालत ने हुक्म दिया है। अदालत ने यह भी रिमार्क दिए कि मीरपुर खास, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, कराची समेत सूबे के तमाम स्कूलों में फराहम करदा फर्नीचर का रिकॉर्ड पेश किया जाए। अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि फर्नीचर के कॉन्ट्रैक्ट किसको दिए गए थे वो तफसीलात भी पेश किए जाए। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने रिमार्क दिए कि स्कूलों में फर्नीचर समेत तमाम सहूलियात फराहम करना सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। मीरपुर खास के डायरेक्टर स्कूल्स और डीओ अदालत में पेश न होने पर अदालत ने बरहमी का भी इज़हार किया है। अदालत ने मीरपुर खास के डायरेक्टर और डीओ को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है। अदालत का बंद स्कूलों को और स्कूलों की कमी से मुतल्लिक भी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया है। रिपोर्ट पेश करने से मुतल्लिक सिंध हुकूमत के वकील ने अदालत से 1 माह की मोहलत मांग ली है। अदालत ने 1 माह की मोहलत देने की इंतज़ाम मुस्तरद करते हुए सिर्फ 2 हफ्तों में सेक्रेटरी तालीम को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। जी बहुत शुक्रिया मुमताज़ जमाली। महकमा एंटी करप्शन की जानिब से सिंध सेक्रेटेरिएट में करप्शन के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली चेयरमैन एंटी करप्शन सैयद जुल्फ़िकार अली शाह की निगरानी में सिंध सेक्रेटेरिएट से कबूतर चौक तक निकाली गई। मज़ीद जानते हैं आज़ाद नौरियो से। जी आज़ाद नौरियो। बिल्कुल, करप्शन के खिलाफ आलमी दिन कल मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज जो है सिंध सेक्रेटेरिएट महकमा एंटी करप्शन की जानब से एक पुरवकार रैली का इनेकाद किया गया, जिसके सरबराही जो चेयरमैन एंटी करप्शन सैयद जुल्फ़िकार अली शाह खुद कर रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि करप्शन का खात्मा बिलाखिर होगा कैसे। शाह साहब, बड़ा अच्छा इक़दाम है, लेकिन करप्शन का खात्मा होगा कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करप्शन का ख़ात्मा सिर्फ महकमा एंटी करप्शन का ही काम नहीं है, इसमें सारे मुआशरे की जो है वो उसको रोल अदा करना है। और इस दिन का मकसद भी यही होता है कि हम ये
उजागर करें लोगों को कि करप्शन मुआशरे का नासूर है और उसको मिलकर ख़त्म करना है। इसीलिए हमने रैली निकाली है कि इसमें हमारे अफसरान, हमारे सेक्रेटेरिएट के जो भी काम करने वाले ऑफिशियल्स और भी जो मोअज़्ज़िज़ लोग और मीडिया, सबको ये हाईलाइट करनी है चीज़ कि करप्शन एक नासूर है, सबको मिलकर ख़त्म करना है। तो हम उसके लिए बहुत कोशिशें भी कर रहे हैं, रिफॉर्म्स भी ला रहे हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इसमें काफ़ी बेहतरी आएगी। शाह साहब, आप एक इंतहाई फ़र्ज़शनास अफसर के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं, मैं आपको ज़्यादा तौर पर जानता हूँ, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये महकमा जो इसका नाम एंटी करप्शन है, उसको एंटी करप्शन का तस्वर दिया जाता है। ये एंटी करप्शन कैसे ख़त्म होगी? यही बात मैं भी कह रहा था कि अभी एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में रिफॉर्म्स का सिलसिला हमने शुरू किया है। इसका सर्विस स्ट्रक्चर बेहतर बनाने जा रहे हैं, इसमें टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, इनके अफसरान की ट्रेनिंग अगले महीने से इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी और इन पे नज़रदारी भी पहले से बेहतर हो जाएगी। तो इंशाल्लाह आप अगले चंद महीनों में बेहतरी देखेंगे खुद, और आप खुद हमें बताएंगे कि बेहतरी आई है। जी बिल्कुल, हर कोई पूरी उम्मीद है कि करप्शन का खात्मा हो, इसलिए जो है चेयरमैन एंटी करप्शन और यहाँ सिंध सेक्रेटरी के मुलाजमिन की जो तंजीम है सेनवा, उनके सदर भी पूरी उम्मीद है कि करप्शन का खात्मा हो, इसलिए जो है इनको मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करने के हवाले से जो है इक़दाम किए, करप्शन का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो सके। तहरीक-ए-इंसाफ के साबिक MNA शकूर शाद ने आइंदा इंतखाबात में लियारी अलायंस बना लिया। आइंदा इंतखाबात में आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। कौमी असम्बली की सीट से शकूर शाद और 2 सूबाई सीटों पर अलामा बिलाल, सलीम कादरी और रज़ी हुसैनी इलेक्शन लड़ेंगे। आदिल जमाली की रिपोर्ट देखिए। लियारी से कौमी असम्बली के हल्का NA 239 और सूबाई असम्बली के हल्कों में PS 106 और PS 107 के उम्मीदवारों ने लियारी अलायंस बनाने का ऐलान कर दिया। 2018 में पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को शिकस्त देने वाले अब्दुल शकूर शाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि TLP के साबिक MPA यूनुस सोमरो और सुन्नी तहरीक के बिलाल कादरी समेत लियारी के मकामी लोगों से मिलकर हमने लियारी अलायंस तश्कील दिया है, जो आज़ाद हैसियत के इंतखाबात में हिस्सा लेगा। लियारी अलायंस के नाम से हम ये जो पैनल अनाउंस कर रहे हैं आज, उसमें कौमी असम्बली के लिए मैं हूँ, 106 से अल्लामा रज़ी साहब हैं और 107 से अल्लामा बिलाल कादरी साहब हैं। साबिक MPA यूनुस सोमरो ने TLP से मुस्तफ़ी होने का ऐलान करते हुए आइंदा इंतखाबात में लियारी अलायंस की हिमायत का ऐलान कर दिया। लियारी की आवाज़ बनने के लिए तमाम सियासी जमातों की बाकायदा इनको ऑफर्स हुई, उसके बावजूद इन्होंने लियारी के खातिर, लियारी के मसाइल के खातिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म सजाया जिसका नाम भी लियारी अलायंस रखा। सुन्नी तहरीक के रहनुमा बिलाल कादरी ने कहा कि लियारी अलायंस किसी भी सियासी जमात से बालातर होकर इंतखाबात में हिस्सा लेगा। लियारी के हवाले से जो अनाउंसमेंट थी हमारे साबका MNA अब्दुल शकूर शाह साहब ने कर दी है कि लियारी अलायंस के हवाले से नीचे की दोनों PS और ऊपर NA के हवाले से जो है वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं। भरपूर इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे और भरपूर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। लियारी अलायंस में शामिल मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने लियारी अलायंस को आज़ाद इंतखाबी ग्रुप करार दिया है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ आदिल जमाली, सिटी 21। महकमा इंसानी हकूक शिकायती सेल के 20 मुलाजमीन को मुलाजमत से फारिग कर दिया गया है। कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती मुलाजमीन को सेक्रेटरी तहसीन फातिमा ने बरतरफ किया है। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोरियो से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा दराए इंसानी हकूक के मुलाजमीन भी निगरान सरकार में अताब का शिकार हो गए हैं। निगरान सरकार ने महकमा इंसानी हकूक शिकायती सेल के 20 मुलाजमीन को मुलाजमत से ही फारिग कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती मुलाजमीन को सेक्रेटरी महकमा दराए इंसानी हकूक तहसीन फातिमा की दस्तखत से मुलाजमत से बरतरफ किया गया है। इनकी बरतरफी निगरान वजीर कानून उमर सुमरो की हिदायत पर की गई है। मुलाजमीन में असिस्टेंट नायब कासिद, ड्राइवर, बोर्ची और दीगर मुलाजमीन शामिल हैं। बरतरफ होने वाले मुलाजमीन में सदाम दाऊद पोता, शाहवाना खान, जफर अली भट्टी, मरियम खान, तुलजा राम, शहबाज खान, मोहम्मद वारिस, सागर, मुदस्सर अली, शाहिद हुसैन, मोहम्मद अफसर और गुलदाद समेत दीगर मुलाजमीन शामिल हैं, जिनको मुलाजमत से फारिग करके इनका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी, साथ ही मौजूद रहिएगा आज़ाद नूरियो। सिविल अस्पताल हैदराबाद KMC के MS डॉक्टर वकार महमूद मेमन का तबादला करके इन्हें डायरेक्टर जनरल सेहत सिंध तैनात कर दिया है। बात करेंगे आज़ाद नूरियो हमारे साथ मौजूद हैं। जी आज़ाद, इस बारे भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा सेहत सिंध में जो है तकर्रर तबादले कर दिए, जिसमें MS सिविल अस्पताल हैदराबाद डॉक्टर वकार महमूद मेमन का तबादला करके उनको नया डायरेक्टर जनरल जो है महकमा सेहत सिंध तैनात कर दिया है, जिसका महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ते हैं। सूबाई वज़ीर कानून मोहम्मद उमर सोमरू की बल्दिया उज़्मा कराची के मरकज़ी दफ्तर में मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से मुलाकात हुई है। शहर की बेहतरी, तरक्की और फलाह बहबूद से मुतल्लिक़ तफ़सीली गुफ्तगू हुई है। शुएब मुख्तार साथ मौजूद हैं। शुएब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल जो है सूबाई वज़ीर कानून मोहम्मद उमर सोमरू ने बल्दिया उज़्मा कराची की मरकज़ी इमारत का जो है दौरा किया है। सूबाई वज़ीर कानून ने मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से मुलाकात की है। इस मुलाकात में जो है शहर की बेहतरी, तरक्की और फलाह बहबूद से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू हुई है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का इस मौके पर कहना था कि KMC कराची शहर और शहरियों के मयार ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। शहर में मुतादिद मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है, मुकर्ररा वक्त पर जो है मुकम्मल कर लेंगे। KMC कौंसिल में बल्दियाती उमूर की बेहतरी के लिए करारदादों के जरिए कवानीन भी बनाए जाते हैं, जिस पर वजीर कानून मोहम्मद उमर सोमरू ने कहा कि शहर की बेहतरी के लिए मजीद कानून साजी की अगर ज़रूरत हुई तो KMC को मदद फराहम की जाएगी। कानून की बालादस्ती और हुक्मरानी से फलाही माशरा तश्कील पाता है। हर शहरी के लिए यकसा तौर पर इंसाफ की फराहमी और आसानी से कानून तक रसाई को यकीनी बनाया जाना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्तों की समाअत हुई। जबरी गुमशुदा शहरियों के अहल खाना को मुआवजा देने से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त हुई है। शहरी यासीन के अहल खाना को मुआवजा दे दिया गया है। अदालत ने काशिफ और दीगर लापता अफराद की बाजियाबी के लिए अमली इक़दाम करने का हुक्म भी दिया है। अपडेट करते चले, लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्तों की समाअत हुई है। जबरी गुमशुदा शहरियों के अहल खाना को मुआवजा देने से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त सामने आई है। शहरी यासीन के अहल खाना को मुआवजा दे दिया गया है। अदालत ने काशिफ और दीगर लापता अफराद की बाजियाबी के लिए अमली इक़दाम करने का हुक्म दिया है। इस्लामाबाद में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट पर तशद्दुद के खिलाफ कराची के यंग डॉक्टर्स भी सरापा एहतजाज बन गए। जिन अस्पताल में यंग डॉक्टर्स ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे इरफान अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। इरफान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक बार फिर YDA सिंध यहाँ नज़र आती हैं, सड़कों पर नज़र आती हैं और अपने मुतालबात के लिए नज़र आती हैं। जिन अस्पताल कराची के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं उनके ऊपर इस्लामाबाद के अंदर जो तशद्दुद किया गया है पुलिस की जानिब से, ये इल्ज़ाम लगाया गया है YDA सिंध की जानिब से। और मेरे साथ डॉक्टर महबूब नूरानी साहब मौजूद हैं। बात है क्या हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात आप लोगों का शुक्रिया। जैसे कि हमारे जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, उन्होंने परसों PMDC ऑफिस के सामने एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया था, जहाँ के उनके जो हुकूक के लिए एक राइट था, उनके लिए प्रोटेस्ट करके वहाँ की जो इंतज़ामिया थी, वहाँ की जो इस्लामाबाद पुलिस थी, उन पे उन्होंने लाठी चार्ज किए, उन पर गिरफ्तारियाँ की हैं। इस पर हमारी पूरी YDA पाकिस्तान, चाहे पंजाब है या इस्लामाबाद है, KP के सिंध, सरापा एहतजाज है। कल भी हमारे YDA पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने मुतालबात जारी किए कि जो हमारे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, इनके जो बुनियादी हक़ है, अभी ये हो रहा है कि जो PMC के बाद जो PMC दोबारा बहाल हुआ, इन्होंने इनकी फ़ीसों में इजाफा किया है। इतनी महंगाई के दौर के बाद इनकी फ़ीस का अचानक 56 में बढ़ाना एक सवाल निशान है। हम चाहते हैं कि जो आला इदारे हैं इस चीज़ को इंटरवेन करें। पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज किया जाएगा अगर इनके मुतालबात मंजूर नहीं किए गए। और ये दिखाइए, ये इस वक्त हाथों के अंदर बैनर, पम्फलेट वगैरह भी उठा रखे हैं। हुकूमत फौरी तौर पर इन सारी चीज़ों का नोटिस ले, इसके खिलाफ कार्रवाई ले। JPMC के अंदर इस वक्त जो YDA सिंध है उसके मुख्तलिफ अस्पतालों से नुमाइंदगान को भी रखा गया है। और इसके अलावा जो YDA सिंध है वो इस वक्त डॉक्टर्स के जो मुतालबात हैं उसके लिए सड़कों पर आई है। और इनका कहना है कि अगर इनके मुतालबात मंजूर नहीं किए गए तो फिर ये एहतजाज का जो दायरा कार है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर बढ़ा दिया जाएगा। जी, कराची में गैस मसाइल शहरियों की ज़िंदगी का रोग बन गए। मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंदिश और प्रेशर में कमी ने मामूलात ज़िंदगी को दरहम बरहम करके रख दिया है। कुरंगी, औरंगी टाउन, शेरशाह, नॉर्थ नाज़िमाबाद, कवानी कॉलोनी और सुल्तानाबाद समेत मुख्तलिफ इलाके गैस मसाइल से मुतासिर हैं। शहरियों का कहना है कि SSGC को मुतादिद शिकायत के बावजूद गैस मसाइल हल नहीं हो सके हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान SSGC के मुताबिक सारिफीन की सहूलत के लिए लाइन पैक को रोज़ाना की बुनियादों पर बेहतर बनाया जाता है।
महकमा रेलवे की नाअहली के बायस मुसाफिरों की मुश्किलात कम न हो सकी। अंदरून मुल्क से कराची आने और जाने वाली ट्रेनें आज भी ताख़ीर का शिकार हैं। पेशावर जाने वाली खैबर मेल 3 घंटे 29 मिनट, लाला मूसा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस 1 घंटा 40 मिनट ताख़ीर से रवाना हुई। लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस 1 घंटा और कराक्रम एक्सप्रेस 1 घंटा 38 मिनट की ताख़ीर से रवाना हुई। रावलपिंडी जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 1 घंटा और पेशावर जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस 1 घंटा 27 मिनट लेट है। मौसम सरमा में भी बिजली के बिलों में रिलीफ ना मिल सका। सदर ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी कहते हैं कि नेपरा बिजली फ्राहम करने वाली कंपनियों का साथ देती है। भारी भरकम बिल और एडजस्टमेंट किस तरह अदा करेंगे, मज़ीद जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम। जी बिल्कुल, नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के सार्फिन को इम्तहान में डाल दिया है। यानी कि के इलेक्ट्रिक के सार्फिन बिजली का 1 महीने का बिल जो कि 30 दिनों पर मुश्तमिल होता है वो जब अदा करेंगे तो उसके साथ साथ उन्हें 60 दिनों की एडजस्टमेंट भी अदा करनी पड़ेगी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शर्जील गोपलानी जो कि सदर हैं ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के। शर्जील साहब, क्या सूरत हाल देखते हैं इस हवाले से कि यानी कि के इलेक्ट्रिक के सार्फिन, चाहे वो कमर्शल सार्फिन हो, ताजिर हों, सनतकार हों, वो जब 30 दिन का बिल अदा करेंगे तो उसके साथ साथ 60 दिनों की एडजस्टमेंट भी अदा करनी पड़ेगी। किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को आप? तो हमने पहले ही बताया है कि नेपरा जो है वो बी रोल का अदा करता है जो प्राइवेट इलेक्ट्रिक कंपनीज़ के लिए, क्योंकि आप पहली बात ये, जब बेसिक आपने जो बिजली के नर्स बढ़ा दिए हैं तो उसके बाद फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस क्यों ली जाती है। और कोई भी कंपनी कोई चीज़ प्रोवाइड करती है उसका काम है वो या तो फ्यूल से बनाए बिजली, या सोलर से बनाए, या विंड मिल से बनाए, या हाइड्रो से बनाए। लेकिन ये तो काम था प्राइवेट बिजली कंपनियों का जो बिजली सस्ती बनाती और फराहम करती। जो आज सर्दियों के जो बिल आने थे, हमें उम्मीद ये थी कि इस दफ़ा थोड़ा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि हमारे एसी बंद हो गए, बिजली का इस्तेमाल कम हो गया है, तो बिजली के बिल कम होंगे तो हम बच्चों की स्कूलों की फ़ीसें और बाकी मामलात को देख पाएंगे। लेकिन नेपरा ने जो इस वक्त जो हमारे फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो 2 माह के एक साथ लगा दिए, हमें उम्मीद नहीं है कि इस साल भी हम सांस ले पाएंगे। क्या मुतालबा करेंगे आप? एक ही मुतालबा है कि खुदारा इस आवाम पर रहम करें और इनके कम से कम सांस लेने दें। जो बेसिक राइट्स हैं वो प्रोवाइड करें। कराची इलेक्ट्रिक को जो प्राइवेटाइज किया गया था वो लोग आवाम को रिलीफ देने के लिए, ना कि लोगों के तिजोरियाँ बढ़ने के लिए। जी बिल्कुल, ये थे शर्जील गोपलानी जिनका कहना है कि ये तस्वुर किया रहा था कि मौसम सरमा में इन्हें बिजली के बिलों में रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन अब चूँकि 2 माह की एडजस्टमेंट यानी कि 60 दिनों पर मुश्तमिल जो एडजस्टमेंट है वो भी अदा करने की पड़ेगी, जिसकी वजह से इनकी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। शर्जील गोपलानी ने मुतालबा किया है हुकूमत से कि इन तमाम सूरत को देखें और बिजली के बिलों की मद में जो है वो रिलीफ फराहम किया जाए, ताकि ना सिर्फ ताजिर बरादरी बल्कि आवाम पर भी जो है माली मुश्किलात उनकी कम हो सकें। जी।